Good morning, students. Today I will further continue the revision of 8th chapter of history, changing the life of widows. विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश. Ram Mohan Roy was particularly moved by the problems widows faced in their life. राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवाओं या विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में करना पड़ता है. In a campaign against the practice of sati. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी. राम मोहन राय was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European languages. राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे. He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no connection in ancient texts. उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है. By the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे. They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan, who was reputed to be a learned man. In 1829 सती was banned. वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी और इसी के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई. The strategy adopted by Ram Mohan was used by later reformers as well. राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient
sacred texts that support their point of view. जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो कि उनकी सोच का समर्थन करते हों. They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है. For instance, one of the most famous reformers, Ishwar Chand Vidyasagar, used the ancient text to suggest that widows could remarry. उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था. His suggestion was adopted by British official and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया. Those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar and even boycotted him. जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया. By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था. In the Telugu speaking areas of the Madras Presidency, Veeraslingam Pantulu formed an association for widow remarriage. मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था. अराउंड द सेम टाइम यंग intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to working for the same cause. लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया. In the north, Swami Dayananda Saraswati, who founded the reform,
association called Arya Samaj also supported widow remarriage. उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया. Yet the number of widows who actually remarried remained low. इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी. Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continued to oppose the new law. विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था और इस तरह रूढ़िवादी तबके इस कानून का विरोध करते रहे. गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल. लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं. Many of the reforms felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है. Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up schools for girls. कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले. When the first schools were opened in the mid-19th century, 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले, many people were afraid of them. जब इस तरह के स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे. They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था और बहुत सारे लोगों को लगता था कि उससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. They felt that girls should stay away from public spaces. उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था. Sometimes women taught themselves. Do you remember what you read about
What do you love Ras Sundari Devi in your book Social and Political Life last year? कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? शी वॉज वन ऑफ दोज हु secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night. ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। In the later part of the century, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिर फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम्स हाउसहोल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ समाज सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि ये धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। थैंक यू।